Okay, so hello everybody, good afternoon and welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu class. Today we are going to discuss first yesterday's questions, and first question is, consider the following statements about Aditya L1. L1 is Lagrangian point 1. First statement is, it is India's first space-based observatory to study the sun. End date, कल हमने देखा भी था इस small article front page पे हिंदू के आपको ये given था. Second statement is, the spacecraft will be placed in a hollow orbit around the Lagrangian point 1 of the Sun Earth system. बिल्कुल ठीक है, इसीलिए इसका नाम L1 है, that is Lagrange point 1. Second, it is expected to take over 100 days for the spacecraft to reach the L1. It wasn't 100 but it was rather 120. ठीक है, 120 दिन से ज़्यादा. The spacecraft carries 5 payloads. It's not 5, it was 7 payloads. So therefore फर्स्ट सेकंड जो स्टेटमेंट्स आपके हैं वो करेक्ट है, जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. इसलिए करेक्ट पेयर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही पेयर्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर आपका अगेन बी, ओनली 2 पेयर्स हो जाएगा. ठीक है, ये मत सोचना कि हर बारी बी ही होगा, जैसे कि लास्ट 1-2 क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बी आंसर आ रहा है, बट इट डजंट मीन कि हर क्वेश्चन में बी ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने 15 मार्क्स के लिए लिखना था, दैट इज सब्जेक्टिव. From GS perspective, that is G20 summit in New Delhi is a crucial moment to adopt a strong leaders declaration committing to collective ambition to combat climate change. We need to comment for 15 marker into 50 words. Fine. So therefore, we discussed an article related to this, and it was given on the editorial page, the second article on the editorial page of the Hindu yesterday, and that was related to Delhi summit demonstrate climate leadership. Fine. There we discussed a few things, especially so again following the same structure, that is IBC, intro, body and conclusion. Fine. So how we can introduce this answer for this question? So you can say that G20 members emit most of the world's greenhouse gas emissions and produce the bulk of its fossil fuels, but most of them have also pledged to be net zero, cutting back on emissions and fossil fuel use. Fine. So this is how you can, in 3-4 lines, you can introduce your topic. After that, now talking about the body part of this question. So of course, body part, after mentioning all, even India's steps India has taken, and apart from that, even G20 members have shown a degree of commitment towards this by adopting more of renewable energy. And today you see overall in energy mix, the renewable share is somewhat around 29%, which was 19% in 2010 itself. Fine. So उसके बाद अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी पार्ट में कुछ सजेशंस हमने बात की थी, 3-4 सजेशंस, तो उसको आपने मेंशन जरूर करना है, that how the need of R is to ensure clear governance structures related to this only. Fine. So therefore first इसके लिए जरूरी है कि 3 एक्शन जो है वो G20 ग्रुप जो है वो कंसिडर करें. उसके लिए फर्स्ट था कि एट द नेशनल एंड लोकल लेवल्स G20 कंट्रीज नीड टू इंप्रूव देयर गवर्नेंस प्रोसेस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन. फाइन, इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था कल. सेकेंड इज, एज द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी हैज एक्नॉलेज्ड, the G20 should see this transition as a way to diversify G20 member economies to ensure long-term economic stability, livelihoods and public revenue streams. Fine. So this is the second, कि हम decarbonization की पे जो है उस पे फोकस ज़्यादा रखें. ठीक है. So step towards decarbonization. Second point. आपने एग्जांपल्स भी इसमें गिवन था डिकार्बनाइजेशन वाले पॉइंट में. ग्लोबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन स्टील नेसेसिटेट्स द इमीडिएट ट्रांजिशन टू लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन पाथवेज. सो ऑफ कोर्स आपको ये मेंशन करना है, जो भी कुछ स्टैटिक्स कुछ डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस आर्टिकल से, कुछ एग्जांपल्स हैं, उन चीज़ों को जरूर आपने मेंशन करना है अपने बॉडी पार्ट के एक्सप्लेनेशन में. अपार्ट फ्रॉम दैट, द थर्ड इज द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, एंड दैट इज the G20 should take a lead in streamlining international affairs, international efforts, in fact, to achieve just energy transition. So these are the 3 pathways through which the G20 as a group would be able to, have a just transition and mitigate the climate change, change or carbon emissions. Fine. In the final concluding remarks, you can say that somewhat
The G20 summit in New Delhi is a crucial moment, fine, for adopting a strong leaders declaration, committing to collective ambition to combat climate change. So in the past few months, even the devastating effects of climate change have been clearly shown. There is simply no more time to waste, right? So this is how you can finally conclude your answer. So that's it as far as your this question is concerned. Let us quickly start our discussion with respect to the today's newspaper itself. ठीक है, फिर हम इस न्यूज़पेपर के बेस पे भी आज की जो डिस्कशन होगी उसके बेस पे आज से हम आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी देखेंगे. ठीक है, okay. Okay, let me search the file. Okay. Okay, so this is the front page or the first page of today's Hindu. ठीक है, देखते हैं कि फ्रंट पेज से क्या इंपॉर्टेंट है. तो ये देख सकते हो, कल भी हमने बात की थी, डिस्कशन की थी इस पे कि 370 जो एब्रोगेशन है आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑफ 2019, उसके ऊपर अभी हियरिंग चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें. एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सीजीआई की कल भी कमेंट्स हमने देखे थे कि कहीं ना कहीं जो 35A आर्टिकल था अंडर 370 आर्टिकल, सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उसने राइट्स जो थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की उस पर कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रेंट काइंड ऑफ था. ठीक है, सो अनदर क्वेश्चन जो पूछा है सीजीआई ने कल किस हियरिंग में वो ये कि व्हेन विल यू रीस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड. यू नो कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है आज के डेट में, एंड लद्दाख जो है वो अनदर यूनियन टेरिटरी है. तो सीजीआई ने सरकार से ही पूछा है, सेंटर से, कि व्हेन विल यू रीस्टोर जम्मू कश्मीर स्टेटहुड, कि कब दोबारा से इसको स्टेटहुड ग्रांट की जाएगी, इलेक्शंस कब होंगे, ठीक है, एंड ऑल दैट, डेमोक्रेसी कैसे रीस्टैब्लिश की जाएगी. तो सेंटर ने कल देखोगे स्लैशेस एलपीजी प्राइसेस बाय 200 अहेड ऑफ पोल सीजन. ठीक है, तो इसमें भी कर दिया कम, प्लस सिर्फ 200 रुपए से कम ही नहीं किया है, बट यहाँ पे एक और भी पॉइंट है, एंड दैट इज द बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, ठीक है, will continue to get a further subsidy of 200 per cylinder in their bank accounts. Already 200 per cylinder इनके बैंक अकाउंट्स में आ रहा था, एडिशनल 200 और इनके बैंक अकाउंट्स में आएंगे. ठीक है, प्लस एक और न्यू प्रोविजन की गई कि 75 लाख एडिशनल उज्ज्वला कनेक्शंस जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स, फॉर फ्री, नॉट फ्री बट फॉर मिनिमल पेमेंट. सो उसमें ऑलरेडी अराउंड 9.5 करोड़ ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है. सो गवर्नमेंट ने अगेन, नॉट एग्जैक्टली 9.5, मोर देन दैट, सो उसके लिए गवर्नमेंट ने अगेन एडिशनल 75 लाख की प्रोविजन की है. एंड नाउ दिस द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द पीएम उज्ज्वला योजना स्कीम विल राइज टू 10.35 करोड़. ठीक है, टोटल. ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, मणिपुर हाउस एंड सेशन इन 48 मिनट्स जस्ट. ठीक है, एक दिन के लिए स्पेशल सेशन बुलाई गई थी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की, बट समवॉट हुआ क्या कि अल्टीमेटली 48 मिनट्स में ही, बिकॉज ऑफ कुकी के जो एमएलएस थे एंड ऑल एब्सेंट थे, या बिकॉज ऑफ लेट अस से दिस जो अपोजिशन मेंबर्स थे उन्होंने चलने नहीं दी सेशन. ठीक है, सो कंसिडरिंग ऑल
सेशन को सस्पेंड करना पड़ा। CWMA दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने ये कहा है कि कर्नाटका को कि इंश्योर 5000 क्यूसेक्स फॉर तमिलनाडु, कि 5000 क्यूसेक ऑफ वाटर रिलीज करो तमिलनाडु के लिए। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट पेज। क्विकली हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, सिटी पेज फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से वो लोग पढ़ सकते हैं जो दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, अदरवाइज दिस इज अ लोकल दिस लोकल न्यूज़ फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। स्टेट्स पे अगर हम आ जाएं तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स ओनली, तो इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। Another states page, again politics you will see more or less on this page as well. Okay. हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर पेज को पेज वाइज चलना है। क्यों? क्योंकि ये जो पेज है आपका, 2 स्टेट्स पेज है, मोस्टली हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, बट ये जो एक न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज रीरोट रेल ट्रैक थ्रू गिवन सेंचुरी। तो क्या है कि ये गिवन सेंचुरी है, दैट इज हुलॉग गिवन की बात कर रहे हैं हम एक्चुअली स्पीसीज की दिस। ये है होलांगपुर, इसको पूरा नाम है होलांगपार गिवन सेंचुरी, दैट इज बेस्ड इन असम एक्चुअली। ठीक है, सो हो क्या रहा है कि असम सेंचुरी डेडिकेटेड टू द वेस्टर्न होलॉग गिवन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। तो रेलवे जो क्रॉसिंग है, जो रूट है, उसकी वजह से जो एक सेंचुरी है उसके बीच से रेलवे ट्रैक गई है, तो कहीं ना कहीं उस सेंचुरी को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसलिए जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, talking about designing an artificial canopy bridge to facilitate the movement of the hoolog gibbons across the broad gauge line within this होलांगपार गिवन सेंचुरी इन असम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये सेंचुरी है कहाँ पे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमें इसकी स्टेटस पता हो। सो हाउसिंग अबाउट 125 होलॉग गिबन्स, इंडियाज ओनली एप, सो दिस इज अ स्पीसीज ऑफ एप एक्चुअली। द सेंचुरी इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट कवर्स दिस मच 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लाइक द अदर 19 गिबन स्पीसीज ऑन अर्थ, इट इज मार्क्ड एंडेंजर्ड। सो IUCN की स्टेटस क्या है इसकी? एंडेंजर्ड टू हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इस वजह से। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड, एंड ये लोकेशन कहाँ पे इस सेंचुरी की। फाइन, दैट्स इट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इससे। नेक्स्ट एडिटोरियल। सो यस, एडिटोरियल से ये जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, द इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इन द क्रॉस हेयर्स। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्या इसमें राइटर क्या ऑथर ने लिखा है एंड क्या सारा इशू क्या है? तो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। बात यह है कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी तो वहां पे भी इस मुद्दे को रेज किया गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाए, सो दैट कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी एक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन किया जाए। इस चीज के लिए अल्टीमेटली जो निकल के आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, ठीक है, जिसके बाद कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के ऊपर ही, सो उसके बाद फाइनल कंपाइलेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। सो अल्टीमेटली ये हुआ 1949 में, एक्चुअली ये हुआ था, ईयर वाज 1949 जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जनरली देखने को मिलते हैं हमें। तो उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि अल्टीमेटली जो पावर है टू bring or legislate over the appointments of this CEC and EC, ये जो है वो किसके हाथ में छोड़ दिया जाए? पार्लियामेंट के। सो पार्लियामेंट, इससे एक हमारे को क्लैरिटी ये होती है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को ये राइट गिवन है कि पार्लियामेंट एक लॉ एक्ट बना सकती है, स्टैट्यूटरी लीगल एक एक्ट बना सकती है, ठीक है, जिसके थ्रू की प्रोविजन की जाएगी कि CEC और EC की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। अभी तक आज तक की जो बात है कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो उसमें सीधा सा है, कोई कमेटी नहीं है, कोई कॉलेजियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, उसमें सरकार बस जो भी है गवर्नमेंट ऑफ द डे वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करती है कि हाँ ये है, इनको EC बना दिया जाए, इनको CEC बना दिया जाए, ठीक है।
मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ कोर्स मीट करनी होती है उसमें, जो भी उनकी एलिजिबिलिटी है। तो इसलिए बस इस तरह से अपॉइंटमेंट होती है, विदाउट एनी कमिटी, विदाउट एनी कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। मींस द अपॉइंटमेंट ऑल टुगेदर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट भी सरकार के ही है। सो ऑफ कोर्स सरकार जो है वो प्रेसिडेंट को जो एडवाइज करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली द सीईसी और द इलेक्शन कमीशन वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये प्रोविजन है। हुआ क्या कि पीआईएल फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो मार्च 2 को 2 मार्च को 2023 ओनली सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो बेंच होती है जिसमें मिनिमम 5 जजेस बैठते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा कि एक कॉलेजियम टाइप या कमेटी बनाओ, नॉट कॉलेजियम कमेटी। उस कमेटी में 3 लोग हो गए अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है उसमें भी सेम काइंड ऑफ कमेटी है, ठीक है, यहाँ सीबीसी है। तो जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविजन की गई है डिफरेंट सेट्स ऑफ कमिटीज की। एंड कहीं ना कहीं ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग्स या जजमेंट के थ्रू ही की गई है। सरकार कोई भी अपने लेवल पे इस तरह की चीजें नहीं करती, बिकॉज कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर उस कमेटी में आप सीजीआई आ जाएंगे, ठीक है, उस कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाएंगे, उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे जो चेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं सीजीआई के आने की वजह से यह है कि सरकार का जो होल्ड है थोड़ा बहुत तो कम होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो 100% से थी वो गवर्नमेंट की थी, अब कहीं ना कहीं किसकी होगी, जुडिशरी की भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें। तो इसलिए सरकारों को ये पसंद नहीं आता। आप भी होते वहां पे तो आपको भी नहीं आता, सीधी सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट अपने मार्च 2 की जजमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट में ये कहा कि आप एक कमेटी बनाओ। So it directed that the chief election commissioner and election commissioner will be appointed by the president of India based on the advice of a committee made up of prime minister। इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी की, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और द लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग इस कमेटी में होंगे जिसको कि चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, बट समवॉट सीजीआई भी इसके मेंबर होंगे, ठीक है। This judgment of Constitution Bench was a major step towards broad basing the ECI and enhancing its constitutional status, ठीक है। Article 324 that is related to the appointment of this EC and CEC and EC and especially related to the Election Commission Constitution of the Constitution contains a provision for such a law to be enacted by the Parliament। So हुआ क्या कि यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि हाँ ये अपॉइंटमेंट के लिए, इन प्रोविजंस के लिए सरकार जो है वो पार्लियामेंट से लॉ इनेक्ट कर सकती है। सो गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया, एक बिल पेश किया सरकार ने अगस्त 10 को, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन अगस्त 10, जिसको कि इन्होंने कहा, राइटर ने कहा कि इट वाज एन अनएम्बिगुअस मूव इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन राज्यसभा ऑन अगस्त 10 which if passed will overturn the judiciary verdict, the verdict of the constitution bench। क्यों? क्योंकि इस बिल में प्रोविजन ये की गई है कि the bill seeks to actually replace the chief justice of India from the high powered selection committee, meaning the committee will be made up of the prime minister as a chairperson, leader of opposition in Lok Sabha especially as a member, and union cabinet minister to be nominated by the prime minister as a member, ठीक है। सो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को सब्स्टिट्यूट किया गया इन प्लेस ऑफ सीजीआई। तो सरकार क्या चाहती है कि हमारे ही मतलब एग्जेक्टिव ही अपॉइंट करे, ठीक है, ना कि इसमें जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट हो। So that's the major issue. The government through this bill has taken the Supreme Court head on, making it clear that it wants greater weightage in the appointments of top election officials and thus a greater hold over the institution itself. So experience and research over the time has shown that incumbent governments, especially those with the authoritarian streaks, do not usually do away with the democratic institutions but instead relentlessly work towards making them pliant. Pliant होता है easily bent जो हो जाए. So of course किसी भी सरकार की स्पेशली मेजोरिटेरियन जो मेजोरिटी के साथ थम्स अप मेजोरिटी के साथ आती है या अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ अगर नेचर है उस सरकार की, तो ऑफ कोर्स किसी भी सरकार की अथॉरिटेरियन हो ना हो यही होती है कि दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो, स्पेशली जुडिशरी की जो से है वो एग्जेक्टिव में कम हो.
ठीक है, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर भी है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि इंटर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें से हो, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। एन इशू दैट हैज सीन मच डिबेट, तो ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो भी हम इश्यूज देख रहे हो सिर्फ आज की बात है या ये डिबेट आज हम कर रहे हैं, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम से डिबेट चलती आ रही है। किस तरीके से ये हम देखते हैं। सो एन इशू दैट हैज सीन मच डिबेट, the procedure of appointment of the CEC and the EC has seen much debate in policy and political circles ever since the Constituent Assembly debated this issue, and much has been already written about it. इसमें इस पैराग्राफ में कुछ कमिटीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। सो एक सजेशन दी गई थी ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट वाज दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी शुड बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द 2/3 मेजॉरिटी इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बट इसको अल्टीमेटली निगेट कर दिया गया, एंड हाउएवर पार्लियामेंट वाज एंट्रस्टेड विद द चार्ज ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट लॉज ऑन द मैटर, ठीक है। सो फाइनल इसके लिए रूल मेकिंग अथॉरिटी ऑफ कोर्स पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के पास ही है। अब यहाँ पे कुछ हम कमिटीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल the VM Tarkunde committee, so this is A, you can say, or first committee appointed by the then Jai Prakash Narayan government in 1975, the Dinesh Goswami committee on electoral reform set up by the then Prime Minister VP Singh in the 1990s, and the second administrative reforms commission, especially इसकी जो fourth report है in 2009 among others made recommendation that the appointment of the member of the ECI should be more broad based. So तीन कमिटीज की यहाँ बात कर रहे हैं। वीएम तारकुंडे कमिटी, सेकंड इज दिनेश गोस्वामी कमिटी, एंड थर्ड इज सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, और सेकंड एआरसी जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। इसके रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जीएस के पेपर में एक्सक्लूसिवली इसकी रिकमेंडेशंस को हम यूज करते हैं, स्पेशली गवर्नेंस दिस रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है। सो इसकी भी रिकमेंडेशंस, इन तीनों ही कमिटीज ने ये कहा कि रिकमेंडेशन जो थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ ईसीआई शुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड थ्रू अ कॉलेजियम, ठीक है। जैसे आज के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की या हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट एक कॉलेजियम की के सहारे होती है। कॉलेजियम मींस ग्रुप ऑफ पर्सन एक्चुअली बैठेंगे, उसमें सीजे जैसे हेड करते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर कॉलेजियम, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट रिलेटेड मैटर हो, स्पेशली यहाँ हाई कोर्ट की, ठीक है। सो इस तरह से, सो अल्टीमेटली होता क्या है कि कॉलेजियम, सो कॉलेजियम की प्रोविजन करने को इन तीनों ही कमिटीज ने कही। सिमिलर सिंगल जो रिकमेंडेशन है इन तीनों ही कमिटीज की, वो क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम या कोई ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क हो अपॉइंटमेंट रिलेटेड, देन लिविंग दिस सॉलिडरी टू द गवर्नमेंट ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट मेड दिस अपॉइंटमेंट्स। तो इन लोगों ने यही कहा कि ये छोड़ने के बजाय सरकार पे कि सरकार के रिकमेंडेशन एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करें इन लोगों को, एससी को एंड सीसी को, ये बेहद जरूरी है कि एक ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए, कमेटी बनाई जाए या कॉलेजियम काइंड ऑफ सिस्टम लाया जाए। इन 2006 a suggestion was further made by former CEC Chief Election Commissioner BB Tandon to the former President of India APJ Abdul Kalam, ठीक है, that a 7-member committee headed by the Prime Minister should choose the CEC and other ECs. The committee should include the Lok Sabha Speaker, the leader of opposition in the Lok Sabha and Raj Sabha, the law minister, the deputy chairperson of the Raj Sabha, and a judge of the Supreme Court nominated by the CGI. So ये former CEC जो थे बीबी टंडन साहब, उन्होंने भी ये लिखा था the then president that is Dr. Kalam कि एक 7-member committee बनाई जाए for the purpose of appointment of CEC Chief Election Commissioner and Election Commissioner, ठीक है। तो उस टाइम पे बीजेपी जो कि आज रूलिंग पार्टी है had supported such a suggestion and argued for a representative collegium which included the CGI to appoint the apex electoral officials. तो उस टाइम पे जो बीजेपी उस टाइम पे ऑपोजिशन में थी, उस टाइम का स्टैंड ये था कि हाँ इस तरह की कमेटी होनी चाहिए एंड सीजीआई उस कमेटी के पार्ट होने चाहिए। बट आज देख रहे हो कहानी उल्टी हो गई है, ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली ऑल दीज हाई लेवल कमिटीज जो भी हमने डिस्कस की, 4 कमिटीज स्पेशली, नॉट कमिटी 4 बट 3 मेजरली कमिटीज एंड एक बीबी टंडन साहब जो फॉर्मर सीसी रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो ऑल दीज कमिटीज
somewhat high level, all these high level committees were this composed of experienced officers, and even the leadership saw the importance of this and recommended that the CGI or a judge appointed by him or her should be part of this committee. But never such a suggestion was made that a union cabinet minister should be bestowed with this membership, and that too by replacing the CGI, जो कि आज के प्रेजेंट कमेटी के लिए गवर्नमेंट ने बिल में प्रपोज किया है, ठीक है, कि सीजीआई की जगह पे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे. तो कहीं ना कहीं ये समवॉट इन आस्किंग फॉर रिफॉर्मिंग इन द अपॉइंटमेंट, द आइडिया वाज टू रेज द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, a few notches higher, ठीक है, instead of on the free and fair bar and pave the way for expunging biases and attachment to the ruling party. ठीक है, कई बार ये ऑपोजिशन वाले I mean वैसे ये सच्चाई नहीं है इसमें, बट फिर भी ये रेज करते हैं वॉइसेस कि नहीं, जो ECI है कहीं ना कहीं जो रूलिंग क्लास है उनके लीडर्स को इतने मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं ले रही है, ठीक है, यहाँ सरकार के कहीं ना कहीं फेवर में कुछ काम कर रही है, ठीक है. सो XYZ I mean ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बट आफ्टर ऑल कुछ खास सच्चाई इसमें है नहीं. बाकी आप लोग खुद समझदार हो, देख सकते हो इसको. So suggestions for the reforms in appointment procedure of the ECI came from the opposition parties. At that time even BJP was in opposition. ठीक है. So held in the high regard. No doubt जो ECI है Election Commission of India, it has been held in a high regard. एक बहुत ही I mean इस body की respect है around the world. ठीक है, because the ECI has been held to be reliable, responsible and trustworthy institution by the people of India, handling elections that involve about 90 crore voters, 900 million in 2019 election data के according 900 million voters थे जिन्होंने वोट कास्ट किया था. Through a machinery of 11 million personnel in setting of economic hardship and inequality is a remarkable feat. However, going soft on the ruling party or its ideology, as the perception is, whether this has to do with the election schedules, electoral speeches, alleged hateful propagandas, electoral rolls or other kinds of malpractices, is eroding not only its own autonomy but also people's trust. Okay? So these are the real issues. Nevertheless, the point remains that the present regime still sees the ECI as an institution with autonomy. ठीक है, कि present regime जो present सरकार है आज भी इसको ECI को as an autonomous institution देखती है. That's a good thing. And this autonomy does not jail with its goals. It would instead like a firmer grip on the ECI through statutory means. ठीक है, तो कह रहे हैं कि फिर भी सरकार को यह है कि कहीं ना कहीं एक फर्मर ग्रिप और बनाने की जरूरत है ECI पे, and that is possible through a statutory means, through the methods of appointment itself. ठीक है, so a good piece of article giving you insight about what's currently going on related to this matter, that is appointment of ECI and ECs. Next article is related to the Rajasthan bill, जिसको कि हम पहले भी शॉर्ट मिनट्स को हमने डिस्कस किया था एज ए न्यूज, बट नाउ दिस इज बिकॉज फर्स्ट टाइम हुआ है अपनी कंट्री में कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या इवन की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी तक इस तरीके के बिल लेकर नहीं आई है, स्पेशली एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर द गिग वर्कर्स. ठीक है, सो गिग वर्कर्स जो बिल है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इसमें कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं. ठीक है, तो राइटर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो गिग वर्कर्स बिल है 2000 ऑफ कोर्स 2023 ऑफ राजस्थान. So in a first of its kind, the Rajasthan government introduced the Rajasthan platform-based gig workers bill 2023 with the aim of ensuring social security for gig workers. Despite its good intent and noteworthy features, the bill appears wanting in important aspects. So they are identifying 4 major issues that could possibly constrict the remit and reach of the bill. So 4 major issues ये लोग raise कर रहे हैं. ठीक है, in this bill. Remember, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि गिग वर्कर्स होते कौन से. गिग वर्कर्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड वर्कर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी के साथ जो लोग डिलीवरी करते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे and they are not treated by the employer or the company or the aggregators. Aggregators are the entity or the company you can say who actually employ them. ठीक है,
but they are not treated as part of permanent employee base or a permanent employee of this aggregator or the company. ठीक है, so they are generally treated as short term contract based workers. तो इसके साथ कुछ इश्यूज हैं जो ये लोग रेज भी कर रहे हैं इस आर्टिकल में. सबसे पहले की डेफिनेशन जो है इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल. सो फर्स्ट इशू इज, 4 इश्यूज डिस्कस किए हैं. फर्स्ट जो इशू है दैट अराइजेस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गिग वर्कर एंड एग्रीगेटर इन द बिल. सो ड्रॉइंग लार्जली ऑन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल दिस 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी. द बिल डिफाइंस a gig worker as a person who performs work or participates in work arrangement and earns from such activities outside of the traditional employer-employee relationships and who works on a contract that results in a given rate of payment. तो देख सकते हो कि डेफिनेशन क्या है. एक ऐसा व्यक्ति person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer and employee relation. कि ट्रेडिशनल जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन होती है वो नहीं है, रादर यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज जस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड. ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन अ गिवन रेट ऑफ पेमेंट. उसके बदले में आपको पेमेंट मिल जाती है. दैट्स इट. फर्दर तो ये तो गिग वर्कर रिलेटेड इशू है. सेकंड, इट डिफाइंस एन एग्रीगेटर एज अ डिजिटल इंटरमीडियरी and includes any entity that coordinates with one or more aggregator for providing the services. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी, उनका ऐप है, आप उनके ऐप के थ्रू. सो दीज आर डिजिटल इंटरमीडियरी और एग्रीगेटर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, इवन उबर, ओला एंड ऑल. फाइन, क्योंकि कंज्यूमर कोई और है, आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपके पास तक आएगा, बट वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी के लिए कहीं और से लिया जा रहा है. ठीक है, पिक कहीं और से किया जा रहा है, डिलीवर कहीं और कर रहे हैं, आपको किया जा रहा है, बट अल्टीमेटली इसमें इंटरमीडियरी कौन है? जोमेटो और स्विगी लेटेस्ट से. फाइन, so that's how they are referred to as aggregator actually. So these definitions are far from clear and binding in treating the aggregator as employers. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इशू है कि ये definitions कहीं से भी aggregator को, जैसे मैंने कहा जोमेटो एंड स्विगी, इनको एज अ एम्प्लॉयर ट्रीट नहीं करते क्लियर कट, या बाइंडिंग प्रोविजंस नहीं है. प्लस एम्प्लॉय एज अ, इनको अगर एम्प्लॉयर ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गिग वर्कर्स जो हैं उनको भी एज एन एम्प्लॉय नहीं ट्रीट कर रहे हैं. एंड इसीलिए ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस है वो यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है. नाउ whether a gig worker and aggregator can be considered an employee and employer respectively has been a thorny issue globally. So ये इंडिया की सिर्फ बात नहीं है. In fact, whether a gig worker can be considered an employee and not an independent contractor is at the core of the ABC test. So ABC test क्या है? It is actually currently integrated into California's labor code, California state of US. वहाँ की जो लेबर कोड है उसमें इंटीग्रेटेड है ये टेस्ट मेंशन है, दैट इज कॉल्ड एबीसी टेस्ट. इसमें होता क्या है? द टेस्ट वाज डेवलप्ड एज अ रिस्पांस टू अ केस इन्वॉल्विंग डिलीवरी ड्राइवर्स फॉर सेम डे डिलीवरी कंपनी कॉल्ड डायनामिक्स. इट स्टेट्स दैट the delivery people employed by the company shall be considered as employees rather than independent contractors unless the company demonstrates that the person is free from control by the company or the aggregator. कि ये टेस्ट करता क्या है कि जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं और डिलीवरी पीपल हैं, ठीक है, employed by the company shall be considered as employees rather than independent contractor unless the company demonstrates that the person is free from control by the company itself. ठीक है, and control in what sense? So control in let us say control with respect to the performance of work, in deciding working hours, etc. So in case the company fails to do so, all the benefits meted out to a full employee of the company should be extended to the delivery workers as well. इशू क्या है यहाँ पे? कंपनीज क्यों नहीं एज ए ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस में आना चाहती हुई? इसलिए क्योंकि अगर एम्प्लॉय इनको एज अ डिक्लेयर कर दिया तो सारे कुछ जो खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड ऑल एंड अदर बेनिफिट्स, वो कंपनीज को एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, वर्कर्स को देनी पड़ेगी. इस चीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि दे आर एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड वर्कर्स एंड नॉट द रेगुलर एम्प्लॉयज. ठीक है. सिमिलरली 2021 की एक जजमेंट है यूके सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि रूल ये जजमेंट आई कि उबर ड्राइवर्स
must be treated as workers and not as self-employed. ये कहा यूके सुप्रीम कोर्ट ने कि सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं ट्रीट करना है उनको, they should be treated as workers. This definition has been integrated under in of course the UK itself. On the contrary, the Rajasthan bill adopts equivocal definitions amenable for conflicting interpretations, which are not only out of sync with the global best practices but also give rise to the second but crucial issue. Fine. So second issue को ये first issue ही giving rise to. So what is the second issue? Second issue is by not defining the gig workers as employees, the bill is limited in its ability to integrate existing labor laws into its ambit. ठीक है कि कहीं ना कहीं आपने क्लियर कट डिफाइन ना करके गिग वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स को एज एम्प्लॉय और एज एम्प्लॉयर you have limited the scope or the ability of this bill or the application of this bill to integrate existing labor laws into its ambit. So this is the second issue. Hence, the aggregators will continue to be insulated from complying with the mandates of the labor laws and remain evasive from the responsibility of providing the gig workers with workplace entitlements. Okay? So this is another issue. But there are certain platforms in India which do have a provision on this, but such an approach runs the risk of converting crucial entitlements like occupational safety into benevolence on the part of the aggregator. ठीक है कि अगर दया दिखाते हैं कंपनी वाले तो बात होगी, अदरवाइज देयर इज नो सच लॉ विच इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द कंपनीज. तो इस रिगार्ड में एक वे आउट जो लेके आई हैं कुछ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. सो दे हैव ब्रॉट about key changes in their laws where the vocabulary no longer surrounds employer or employee but rather a person conducting a business or undertaking. So ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने ये किया है अपने बिल में कि वहां से जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी ये टर्म्स हैं इसको ना यूज करके रादर इस फ्रेज को यूज किया है अ पर्सन कंडक्टिंग अ बिजनेस और अंडरटेकिंग. पर्सन कंडक्टिंग अ बिजनेस और अंडरटेकिंग दैट इज PCBU. जो भी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं या अंडरटेकिंग मींस एम्प्लॉयर हो गया, सीधी सी बात है, लोगों को और लोगों को एम्प्लॉय करेगा तो ऑफ कोर्स दे वुड बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय. फाइन. सो देयरफॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैज कम अप विद दिस such kind of terminologies. And worker in their workplace, the onus is on the PCBU to ensure the health and safety of the worker while at the workplace or anywhere else while working. So this is a good thing. Similar things could be accumulated. Third issue is the bill aims to create a database of gig workers, ठीक है, wherein the details of all the workers on boarded or registered with the platform would be transferred to the proposed gig workers welfare board. थर्ड इशू ये है कि जो मेंशन्ड है इस बिल में कि जो भी डेटाबेस होगा इन गिग वर्कर्स का वो सारा कुछ मेंटेन किया जाएगा ऑन बोर्ड और रजिस्टर्ड किया जाएगा विद द प्लेटफॉर्म दैट वुड बी ट्रांसफरेबल और ट्रांसफर टू द बोर्ड. दैट बोर्ड इज रेफर टू एज गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो कि सारी इनसाइट जो है वो इस बोर्ड की ओवरसाइट रहेगी ऑन ऑल दिस प्रोविजंस. तो इस पर्टिकुलर बिल में एक बोर्ड की भी प्रोविजन की गई है जो इट विल टेक केयर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस प्रोविजंस ऑफ दिस बिल. So such a database maintained by the board does not withstand the duration or time of engagement with the app-based platforms. Means चाहे आप उस कंपनी के साथ सपोज जोमैटो के साथ आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका डेटा एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, स्टोर्ड है मीन्स स्टोर्ड है, और वो बोर्ड देखेगा कि कब तक गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने डिसाइड करना है कि आपकी डेटा कब तक वहां पे रहेगी कब तक नहीं रहेगी. ठीक है, यू हैव नथिंग टू डू, आई मीन आप कुछ नहीं कर सकते. सो इन अदर वर्ड्स, whether the worker continue to be with the platform or not, the registration is valid for perpetuity. ठीक है, this progressive element might become an unintended impediment. कैसे? सपोज आप एक वर्कर हो एंड आप दो तीन, नॉट जस्ट जोमैटो बट आप स्विगी के साथ भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल उसकी भी डिलीवरी कर रहे हो. ठीक है, तो इस केस में दिक्कत ये आ सकती है कि जोमैटो को ये लग सकता है कि यार ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं काम कर रही है, ये दूसरे और भी दो कंपनियों के साथ काम कर रहा है. तो उस केस में आपके साथ कहीं ना कहीं बायसनेस दिखाई जा सकती है. ठीक है, because the company would be or aggregator would be able to get to know about the workers details of employment with the multiple aggregators and come out with the mechanism that impair the opportunity choices before the gig worker.
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि या तो हमारे साथ काम करो या उनके साथ काम करो, सीधी सी बात है, दोनों के साथ नहीं कर सकते। फाइन, सो सच काइंड ऑफ choices could be posed before the worker. So the bill has no preventive mechanism in this regard. ठीक है, बिल ने कोई सोल्यूशन या कोई प्रिवेंशन रिलेटेड मैकेनिज्म इसमें इंश्योर नहीं किया है. So this is the third issue. The fourth and the last issue is the bill at its core aims to guarantee social security to platform-based gig workers by constituting a representative welfare board and creating a welfare fund. It brings in 8 aggregators or primary employers-based service under its remit. Yet, it neither defines categorically what constitutes social security nor specifies welfare measures that can broadly be constituted as social security. तो कहीं भी ये इस बिल ने डिफाइन नहीं किया है कैटेगोरिकली कि what constitutes as social security. Nowhere also defines or specifies the welfare measures that is going to undertake. Plus that can broadly be constituted as social security. So another issue ये है कि जैसे definition में clarity नहीं है, वैसे ही आपकी social security related definitions में भी clarity नहीं है. Okay. Though the board will have 5 gig workers representatives nominated by the state government, how much say they will have in the presence of vastly powerful representative from the platforms, bureaucracy and government is a moot question. ये विचार करने लायक है कि 5 वर्कर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे इस बोर्ड पे, बट उनकी कितनी पावर होगी अमिट्स द पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव जो उसके बोर्ड पे होंगे, जो कि एम्प्लॉयर भी होंगे जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया है, ठीक है, प्लस ब्यूरोक्रेसी भी होगी स्टेट की, प्लस गवर्नमेंट ने आप उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. सो ऑफ कोर्स इनके बीच में वो लोग जब बैठेंगे वर्कर्स, तो इट्स अ काइंड ऑफ विचार करने लायक बात है ये कि उनकी कितनी से होगी. ठीक है, सो अनदर गुड क्वेश्चन और इशू. Thus, due to these shortcomings, whether the bill can deliver what it promises appears doubtful. तो इन इश्यूज की वजह से जो बिल ने प्रॉमिस किया है क्या उस पर डिलीवर कर पाएगा, इट्स अ क्वेश्चनेबल. ठीक है, और डाउटफुल है. ओके, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, चलो क्विकली लेट अस हैव लुक एट द मिसलेनियस फैक्ट्स. So India lodges a strong protest with the China over new map. Absurd claims said by minister और foreign external minister. क्योंकि कल भी हमने बात की थी कहीं ना कहीं चाइना ने क्या किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है और जो अक्साई चीन है उसको अपने मैप पे दिखा दिया है. ठीक है, आज अरुणाचल प्रदेश को ये चाइना साउथ तिब्बत मानता होता है. ठीक है, एंड अक्साई चीन जो कि पाकिस्तान इसको गिफ्ट कर दिया था. ठीक है, so that is part of course somewhere forms the part of और जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ. ठीक है, पीओके वाली साइड. तो अक्साई चीन अरुणाचल आर इनएलिनेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया इवन सेड बाय कांग्रेस. तो ऑफ कोर्स इसमें पॉलिटिक्स छोड़ के यूनिटी की जरूरत है कि ऐसे जब मुद्दे होते हैं तो सरकार हो या अपोजिशन हो साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है. ओके, व्हाट एल्स इंपॉर्टेंट. पॉलिटिक्स ही चल रही है यहाँ पे. ओके, 41.1% नरेगा, दैट इज मनरेगा अब इसको बोलते हैं हम, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वर्कर्स आउट ऑफ आधार बेस्ड वेज सिस्टम. कि आधार के साथ जो लिंक करने की बात कही गई थी कि जो इनको वेजेस पे होती है वो आधार के थ्रू जैसे थंब के थ्रू स्कैनिंग हो जाती है एंड सीधा इनके अकाउंट में पैसा चला जाता था. कि कहीं ना कहीं 41.1% मनरेगा वर्कर्स ऐसे हैं दोज आर आउट ऑफ आधार बेस्ड वेज सिस्टम. फोर्थ एक्सटेंशन ऑफ स्टार्टिंग पेमेंट्स थ्रू इट्स एंड्स टुमारो. NGO says 1.2 crore people in top 5 states will not be paid because their accounts are not enabled for the new payment system. ठीक है, तो ओवर द टाइम गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म लेके आई है, वी कॉल इट ABPS, दैट इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है, सो फोर्थ जो इसकी पेमेंट एक्सटेंशन है कि एक्सटेंड की गई थी कि सबको जो है सारे वर्कर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए कि जो आधार है उसके सहारे इनकी पेमेंट की जाए, इनके अकाउंट को लिंक किया जाए. ठीक है, बट फोर्थ एक्सटेंशन इसके लिए दी गई थी. उसके बाद भी ये देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस NGO कि समवॉट अभी भी क्या है 41.1% लोग जो हैं दे आर स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर दिस ABPS बेस्ड मोड ऑफ पेमेंट. ठीक है,
सो एबीपीएस करता क्या, इट यूजेस द वर्कर्स यूनिक 12 डिजिट आधार नंबर as his or her financial address. The worker's Aadhaar details must be seeded with the job card and bank account. Aadhaar details should be mapped with the National Payment Corporation of India database, and the bank's institutional identification numbers must itself be mapped with the NPCI database. तो ये सारी लिंकेजेस होती हैं, लिंकिंग्स होती हैं, उसके बाद फाइनल जो है पेमेंट की जाती है। टॉप 5 स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है एंड राजस्थान है। With active Manrega workers, 1.2 crore will no longer be eligible for payments because they do not have ABPS enabled accounts. ठीक है, सो ये एक मेजर इशू है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इशू क्या है कि पेमेंट तो सबको करनी है ना, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो आधार बेस्ड से लिंक्ड होना हो। इंडिया एंड केन्या साइंड MOU फॉर शिप बिल्डिंग कोलैबोरेशन। सो ध्यान रखना कि इंडिया एंड केन्या ने MOU साइन किया है फॉर शिप बिल्डिंग। नेक्स्ट इज प्रज्ञान, जो हमारा रोवर है, इसने कंफर्म किया है सल्फर की प्रेजेंस को नियर साउथ पोल ऑफ द मून। नाउ द सर्च इज ऑन फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, so this is the news. Dispel doubts among tribes over sickle cell disease और sickle cell anemia भी बोल देते हैं हमको। ठीक है, जो मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी इज यूनियन दिस ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। सो इन्होंने कहा है कि डिस्पेल किया जाए, बिकॉज हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्क्रीन 7 करोड़ ट्राइबल पीपल फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज होती क्या है? सो इसमें क्या है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है, ये डिसऑर्डर है। ठीक है, वो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी जो शेप है वो सिकल की तरह हो जाती है। ठीक है, इस वजह से इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स रिलेटेड। ठीक है, सो इट इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ डेटा बैंक ऑफ ट्राइबल पीपल्स हेल्थ। ठीक है, बट हो क्या रहा है कि जनरली ट्राइबल्स थोड़े सस्पिशियस से हैं, सो देयर वाज कंसिडरेबल सस्पिशन इन द टारगेट ट्राइबल पॉपुलेशन ओवर व्हाई द गवर्नमेंट वाज टेस्टिंग देयर ब्लड। ठीक है, सो इस सस्पिशन को खत्म करना जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट की एक मिशन है, एंड मिशन वो ये है कि गवर्नमेंट मिशन इज टू मेक इंडिया फ्री ऑफ दिस सिकल सेल डिजीज बाय 2047. So this is genetic blood disorder, especially prevalent among the tribal populations in India. So as a part of its mission, the government is trying to screen about 7 crore tribal people in 17 identified states for SCD traits of SCD by 2025. कि 17 states में 7 करोड़ जो ट्राइबल पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड किए गए हैं, इसके लिए उनकी जो स्क्रीनिंग कर ली जाए पूरी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, this data would be used for creating digital data bank of detailed health profiles of tribal people living in these areas to help government healthcare system to accurately treat them and target them. ठीक है, so that's a good thing. Another thing is, एक रिसर्च है वो ये कह रही है कि साइक्लोन फ्रीक्वेंसी जो है इट में राइज ओवर इंडियन कोस्ट फ्रॉम द वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन. A combination of global warming and Pacific decadal oscillation can lead to more cyclones. ठीक है, so this is a study actually. So Pacific this decadal oscillation है क्या? So it actually repeats every 20 to 30 years, could make such cyclones more frequent in the coming years. ठीक है, combination of global warming and cyclical event called the Pacific decadal oscillation related to the Pacific Ocean. And currently El Nino is there underway. So El Nino is developing in the Pacific, the effects of which are manifested in central and southern India, which have recorded rainfall deficits of 7% and 17%. So El Nino जो suppress करता है monsoon rainfall को इंडिया में, ये ध्यान रखना, negatively impacts the agriculture and of course the monsoon and therefore agriculture production. So southern India especially and central India जहाँ पे हमें deficiency देखने को मिली है rainfall में. Now from the world page, तो वर्ल्ड पेज से पाकिस्तान में एंड ऑल नॉट दैट रेलिवेंट. ठीक है, हाँ. सो मॉनसून ऊज में लिफ्ट फूड प्राइसेस. मॉनसून जैसे हमने देखा कि बारिश की डेफिशिएंसी देखने को मिली है सेंट्रल एंड सदर्न रीजन में, सदर्न इंडिया में. सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये हो सकता है कि फूड प्राइसेस जो है फर्दर हमें अपवर्ड राइजिंग देखने को मिल सकते हैं. तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी फिर बढ़ सकती है. ठीक है, सो एक इकोनॉमिस्ट ने फ्लैग किया इस रिस्क को, पोज टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बाय रेटिंग वेरिएशन इन दिस ईयर्स साउथ वेस्ट मॉनसून. ठीक है,
Finally, the sports page. So we have covered whatever relevant things were there from the today's newspaper. Okay, fine. So that's it. But before we stop here, let us quickly have a look at the today's questions based on the today's this discussion itself, editorial itself. Is this? I think there is some issue with this. I think there is some issue with the file itself. So today's question should be, shared in the group itself. Okay, because it's not showing up here. So there is certain issue with the file itself. So आज के जो भी questions है based on 2 questions, one for prelims, one for mains, वो आपको group में share कर दिए जाएंगे. ठीक है? That's it from my side. Thank you, and do read and revise these important articles plus the miscellaneous facts, especially the news related to Holog, Gibbon and all, because UPSC does like ask these questions, such kind of questions. So that's it. Thank you. Stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.